So these are some eastern states of India. Like you can see the Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, and Meghalaya, Bhutan is not a part, Sikkim, and West Bengal and Odisha also. So these are some states, and you know that you will be able to know that these 7 states are called 7 sisters of India. Can you count them? Sikkim, Assam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All these are 7. It means Sikkim, Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. These are the 7 sisters of India. Okay, so today we are going to study the handicrafts of Eastern India. In your book there are 15 examples given of the handicrafts of India, in which the first one is given in the help box. We are going to study Khamti tribal wooden Buddha. Can you see in the picture of your book? If you have a book, you can please open your page number 9. Okay. So the 10th picture you can see from Arunachal Pradesh, that is Khamti tribal wooden Buddha. Let me show you the Khamti tribal wooden Buddha picture in the whole way. Can you see this picture? Khamti tribal wooden Buddha? Yes, ma'am. Yes, it is totally made of wood. It is a work of wood. You know that in Arunachal Pradesh, people generally used to make the things with the wood. Why? Because there is abundance of forest, and that's why, because of the forest is in abundance, that's why people used to make the craft things or the materials with the help of wood. Because I have told you earlier also that wherever the things are found in abundance, people used to make those things to make their own craft. As I told you on that day that in Odisha, people used to make the toys with the help of seashells. Why? Because there is a lot of coastline, a very long coastline, and people used to use those seashells to make those toys because it is found in abundance. Okay. Now let's go to the next one, that is Eri silk weave sari. Okay. You can see in this one, class, it is very important to know because you must have seen this kind of cloth wearing by your teachers also. Class, have you seen this? Because you know that it comes in, generally it is considered that it is the most elite class sari for wearing for those who are in some profession. You know that your Rashtrapati and all the high class people generally wear this kind of sari because it comes in the sober look. It comes in sober look and people generally wear it. Look, this is the teacher and she is wearing the same sari. And what is the main feature of this sari? You can see in the आंचल of this sari. इसका आंचल आप लोग देख रहे होंगे, इसके आंचल में आप लोगों को कोई डिजाइन नजर नहीं आएगी. पहली खास बात क्या होती है कि इसमें बॉर्डर होता है, ठीक है. और इसकी दूसरी खास बात क्या होती है कि इसके आंचल में केवल लाइंस होती हैं, एक फिक्स पैटर्न पर एक लाइनें बनी होती हैं. ये देखो आप लोगों को आंचल दिख रहा होगा साड़ी का, इसमें केवल लाइंस होती हैं. इसमें ज़्यादातर डिज़ाइनें नहीं होती, और जो डिज़ाइनें होती भी हैं तो वो बीच बीच में कहीं नहीं होती, बस केवल आंचल में होती है. बाकी पूरी साड़ी क्या होती है, बिल्कुल एकदम सिंपल होती है. यू कैन सी बहुत ज़्यादा इसमें वर्क नहीं होता, बस सिंपल सी लाइंस में, और कह सकते हो आप लोग कि इसमें लाइंस के रूप में ही पूरी साड़ी ऐसे बनी होती है. अब तो इसमें धीमे धीमे बहुत सारी क्रिएटिविटी लोग कर रहे हैं जिसमें इसमें बीच बीच, लेकिन जो इसकी जो आप कह सकते हो जो ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल साड़ी होती है वो कुछ ऐसी होती है जिसमें बॉर्डर भी उसी कैटेगरी का होता है और उसका
समझ में सबको? ये तो हो गई आपकी एरी सिल्क वीव साड़ी। इसके बाद हम लोग चलते हैं एंडी सिल्क मटेरियल। Anti silk material and eri silk material are same, is it? Let me see. Anti silk material is given on the 4th, that is from Meghalaya. You know that class, let me tell you one thing. क्योंकि देखो ये सब बिल्कुल अगल बगल पढ़ते हैं ना बच्चों, तो दोनों का जो वर्क होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। बस उसमें एरी सिल्क मटेरियल और एंडी सिल्क मटेरियल में छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो एरी सिल्क मटेरियल होता है उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होती, एंडी सिल्क मटेरियल में डिज़ाइन होती है। बस इतना। जैसे अभी आप लोगों ने जो पिक्चर देखी इससे पहले, उसका तुम लोग फैब्रिक देख सकोगे, ये वाला इस तरीके का होता है। और इसका जो कपड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया जाता है। तुम लोग इसका कुर्ता भी पाओगे, इसमें बहुत छोटी छोटी डिज़ाइंस बनी होती हैं। जैसे अभी आप लोगों को मैंने दिखाया ना कि जो इससे पहले वाली जो एरी सिल्क डिज़ाइन थी उसमें केवल लाइन से बस तागों को क्या कर दिया गया था, बांध दिया गया था। लेकिन इसमें आप लोग डिज़ाइन भी पाओगे और साड़ी के बीच में जो पूरा आपका जो पल्ला होता है पूरे में आप लोग छोटे छोटे दूर जगह पर डिजाइन पाओगे एट द डिस्टेंस। बट इन एरी सिल्क फैब्रिक देयर इज नो पॉइंट्स एंड देयर इज नो स्मॉल डिजाइंस बिटवीन द साड़ी। ओके, क्या समझ में आया दोनों में अंतर कि बॉर्डर दोनों में होता है लेकिन दोनों में डिजाइनें अलग अलग होती हैं। आया अंतर समझ में? अब नेक्स्ट है आप लोगों का लॉन्ग पी पॉटरी ब्लैक स्टोन। बच्चों ये तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्केट में इस वक्त बिकता है और बहुत ही फेमस भी है। What is the name? Long P pottery. Look at this. This is the picture of the black stone. How it has been made. Let me tell you one thing. First thing, that whenever they are made, because of the black stones, how it is black. Let me tell you one thing. जो वहाँ के जो पहाड़ होते हैं ना, जो कि जहाँ पर लॉन्ग पी पॉटरी बनाई जाती है, वो कौन सा जिला है, कहाँ बनती है? मणिपुर में। कहाँ बनती है बच्चों? मणिपुर में। इसकी खास बात क्या होती है कि मणिपुर जो होता है वो एक तरीके का पहाड़ी एरिया, ठीक है। पहाड़ में बहुत ज़्यादा काले पत्थर पाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा काले पत्थरों को तोड़कर और उन्हें खरोंच कर इन बर्तनों का निर्माण किया जाता है। और उसके अलावा अब तो पहले तो क्या होता था कि बर्तनों को तोड़ फोड़ कर गोला बना करके बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या करते हैं इसको बनाने के लिए, इसकी जो काली मिट्टी होती है, जो मणिपुर में काली मिट्टी पाई जाती है, उसको लेकर आया जाता है और उसको पकाया जाता है, उसे और काला किया जाता है और फिर उसको उस तरीके का शेप दिया जाता है। आया समझ में? इस तरीके से ये सारी पोट्रीज, इस तरीके के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। अभी पता है आप लोगों को, जब से आत्मनिर्भर भारत एक नया अभियान चलाया सरकार ने, आप लोगों को तो पता ही होगा आत्मनिर्भर भारत के बारे में। हाँ, सरकार ने इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये छोटे छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाते हैं, अपने घरों में काम करते हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने एक नया RBI से एक नया प्लान चालू किया है, जिससे लोग अपना स्टार्टअप बिजनेस चालू कर सके और इन बर्तनों को दूसरे बाजारों में या विदेशों में बेच सके, जिससे उन्हें क्या हो, इससे विदेशी पैसा भी हमारे इंडिया में इन्वेस्ट होता चला जाएगा। तो इस तरह आत्मनिर्भर
जहाज बनाने के लिए सरकार ने इन बर्तन बनाने वाले या इन छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोगों को बढ़ावा देने के लिए नई नई स्कीम्स और पॉलिसीज बताई हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करी हैं। अब नेक्स्ट है आपका थंगका पेंटिंग। ये जो अभी मैंने आप लोगों को स्टोन वाला पढ़ाया, ये आप लोगों को बताइए इसमें कौन सा पॉइंट है, वो लोग बताएंगे जिनके पास बुक है। पहले हम लोग थंगा पेंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। थंगा जो है ये एक तरीके की बुद्धिस्ट डायटी की फोटो है and it is Tibetan Buddhist painting on cotton and silk applique, usually depicting a Buddhist deity, scene or mandala. Mandala, you know what do you mean by mandala? कोई मंडला के बारे में जानता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेम्पल्स में कौन सी जगह को मंडला बोलते हैं? मैम बीच में शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका सेंट्रल हॉल होता है ना, मंडला उसी को बोलते हैं, ठीक है। जो बीच का हिस्सा होता है जहाँ पर सारे लोग, जैसे क्या होता है पूरे मंदिर में हमारा जो आप लोगों का जो टेम्पल का स्ट्रक्चर होता है, उस टेम्पल के एंटायर स्ट्रक्चर में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है गर्भगृह, जो एकदम अंदर होता है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बीच का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मंडल, और सबसे बाहर वाला हिस्सा क्या बोलते हैं, गोपुरम। ये 3 अलग अलग हिस्से होते हैं किसी भी मंदिर के। चाहे आप लोग नागा शैली में चले जाओ, चाहे आप लोग द्रविड़ियन शैली में चले जाओ, दोनों ही जगह आपको अलग अलग वो मिलेंगे। मतलब ये सारी डिजाइन, बस इनके नाम अलग मिलेंगे लेकिन डिजाइनें सेम टू सेम होती हैं। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद ये आप लोग इसकी पिक्चर्स देख सकते हो थंगका, जिसमें इसकी पेंटिंग की क्या खास बात है बच्चों, कि ये जो पेंटिंग्स है ये ज़्यादातर कपड़ों पर करी जाती है। जैसे आप जनरली पेंटिंग्स देखते हो कागज पर करी जाती है, लेकिन ये पेंटिंग कपड़ों पर करी जाती है। और इसकी एक और खास बात है, ये केवल और केवल बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती है। इसमें क्या पता चला, केवल और केवल बुद्ध की मूर्ति बनाते हैं। आप पूछोगे कि मैम केवल बुद्ध की ही मूर्ति क्यों बनाते हैं, कोई और डिजाइन क्यों नहीं बनाते? इसलिए नहीं बनाते बच्चों क्योंकि सिक्किम बहुत ही छोटा राज्य, पता है ना, सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट कह सकते हो एंड टाइडिएस्ट भी बोल सकते हो। पूरी भारत का सबसे साफ सुथरे राज्य में सिक्किम का नाम आता है, सबसे ज़्यादा साफ सुथरा, कि कोई गंदगी नहीं, 0% गंदगी के बारे में सिक्किम का नाम आता है, ठीक है। अभी कोई आपसे पूछे कि विच स्टेट इज कंसिडर्ड एज द टाइडिएस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया, तो क्या बताओगे नाम? सिक्किम। हाँ, सिक्किम एक्चुअली बच्चों बहुत ही छोटा राज्य है, इसकी खास बात यह है, लेकिन ये हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट से फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये हमारा पार्ट है, लेकिन चाइना भी इसको अपना पार्ट मानता है, भूटान भी इसको अपना पार्ट मानता है, और नेपाल भी कई बार इस तरीके की बातें कहने लग जाता है। तो लेकिन ये है तो इंडिया का ही पार्ट, ठीक है। और चूंकि उन दोनों के बीच में आता है, इसलिए कई बार इसके ऊपर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहे हैं, लेकिन सिक्किम बिल्कुल इन सब चीज़ों से अछूता रहा है। बहुत ही शांत प्रदेश है। कई बार जानते हो बच्चों, जो डॉक्टर जिनको हाइपरटेंशन की दिक्कत होती है, ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर जानते हो क्या बोलते हैं कि जाइए आप सिक्किम घूम कर आइए, क्योंकि वो वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर इज़ वेरी नाइस एंड वेरी फ्रूटफुल फॉर एनी हु इज़ अनहेल्दी, ओके। तो इसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ पर बुद्धा की मूर्ति इसलिए बनाते हैं बच्चों, क्योंकि बुद्धा सिक्किम में केवल बौद्धिस्ट लोग ही रहते हैं। वहाँ पर आपको अदर रिलीजन के लोग बहुत कम मिलेंगे, लाइक हिंदू, लाइक मुस्लिम्स, लाइक अदर रिलीजन के लोग आपको इतने बहुत ही कम मिलेंगे। उनकी पूरी जनसंख्या में से 99% जनसंख्या केवल बुद्धिस्ट है, और वहाँ पर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। जैसे लद्दाख है ना आप लोगों का, पूरा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री से पटा हुआ है। जस्ट लाइक दैट सिक्किम इज ऑल्सो देयर, लेकिन सिक्किम लद्दाख से बिल्कुल अलग है। लद्दाख जो है पूरा तरीके से वीराना हो चुका है, वहाँ पर खेती वेती बहुत कम होती है, केवल बारले उगता है वहाँ पे। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है, ऐसा सिक्किम में नहीं होता है। सिक्किम बहुत ही फला फूला शहर है, और बहुत ही अच्छा, वहाँ पर उसका शहर भी उतना ही अच्छा है तो उसके गाँव भी उतने ही अच्छे हैं, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है कि ये बौद्धिस्ट लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ पर कपड़ों की पेंटिंग पे भी आपको बुद्ध का ही चेहरा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज इक्कट। अभी मैंने सिक्किम के बारे में एक खास बात बताई, क्या थी वो?
बहुत ज़्यादा, वेरी गुड। इट इज क्लीनलीस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया। अब इसकी खास बात क्या है, देखो इसका जो पैटर्न होता है बच्चों, इसका पैटर्न ही इसकी सबसे खास बात होती है। यह आप लोगों को ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? आसाम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा बच्चों? आसाम में। आपके बुक में क्या आंसर दिया हुआ है इक्कत का? उड़ीसा लिखा है। हाँ, आपके बुक में उड़ीसा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं बता रही हूँ, पहले ये जो था ये आसाम का मटेरियल था, लेकिन ये धीमे धीमे क्या हुआ कि जो आसाम के जो एम्ब्रॉयडरी करते थे, जिन लोगों ने इसको इजाद किया, आसाम में इसका इजाद हुआ, तो वो धीमे धीमे कहाँ चले गए? उन्होंने आसाम छोड़ दिया, क्योंकि आसाम में और भी बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज की टाइप्स है ना, तो इसकी बिक्री कम होने लगी, इसलिए वहाँ के लोग उठकर कहाँ चले आए? उड़ीसा चले आए। कहाँ चले आए? उड़ीसा चले आए। ठीक है, आप लोग इस तरीके का फैब्रिक आप लोग ज़्यादातर कुर्ती से पाओगे। जो कॉटन के जो साड़ियाँ होती हैं आप लोग इसमें पाओगे, कुर्तों में पाओगे, गर्ल्स की कुर्ती से पाओगे और साड़ियों में पाओगे। बाकी आप लोगों को ये वाले डिज़ाइन बहुत कम मिलेंगे, बहुत। इसकी खास बात क्या होती है? इसमें हमेशा ये माउंटेन्स की जो ट्राइंगल शेप्स की जो डिज़ाइन होती है यही केवल पाई जाती है। इसमें ज़्यादातर शेप कैसे होते हैं? ट्राइंगल शेप। You can see in this picture, in this picture, in this picture, everywhere you can find a triangle shape picture or a triangle shape embroidery on these cloths, and they are made of silk and cotton both. Okay, सिल्क और कॉटन दोनों का ही इसमें यूज किया जाता है। पहले केवल कॉटन में इसका यूज किया जाता था, अब धीमे धीमे टेरिलीन, टेरिकॉट हर जगह इस डिजाइन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब धीमे धीमे हम लोग बहुत क्रिएटिव होते चले जा रहे हैं ना बच्चों, इसीलिए। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बताया? सोला पेट। अभी मैंने इसके बारे में क्या बताया था बच्चों कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? अभी मैंने ओरिजिन के बारे में क्या बताया था? हाँ, नहीं, आसाम में इसका ओरिजिन हुआ था, लेकिन धीमे धीमे ये कहाँ पहुंच गई? उड़ीसा पहुंच गई। उड़ीसा। हाँ, चलो। सो सोला पेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट इज सोला एंड इंडियन कॉक। इट इज ड्राइड मिल्की व्हाइट स्पॉन्जी प्लांट मैटर फ्रॉम द एस्किनोमिनी स्पीसीज। It can be pressed and shaped into objects of art. What is this? Let us see the crafts of sola pit. Traditionally, sola pit products have been used for decorating Hindu idols and creating the headgear of the bride and groom. Headgear, you know, sehra. Headgear मतलब sehra. Headgear of brides and grooms for the traditional Bengali wedding. Class, you must have seen the Bengali wedding. इसमें वो लोग एक वाइट कलर का सेहरा पहनते हैं अपने सर के ऊपर। देखा है कि नहीं? नहीं देखा है? ये जरूर देखा होगा। इसमें से कोई बच्चा बंगाली होगा जो उसको तो पता होगा अच्छे से। कोई बंगाली बच्चा है? कोई भी बच्चा नहीं है? ओहो, तो बड़ी इस तरीके की जो डिजाइन देख रहे होगे आप लोग, पिक्चर क्लियर है एकदम। इसमें व्हाइट कलर का ये पूरा जो है, इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि ये व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है। ठीक है, और अभी तो मैंने बताया कि ये किस चीज से बनता है। इट इज हेडगियर्स फ्रॉम द डेकोरेटिंग हिंदू एंड ये मतलब एक तरीके का वो होता है, प्लांट होता है, प्लांट के से वो चीज निकाली जाती है। ये देखो, अभी मैंने इसके बारे में बताया तो था ऊपर कि ये एक तरीके का मिल्की व्हाइट स्पॉन्जी प्लांट होता है। उस प्लांट से उसका एक्सट्रैक्ट, जैसा रबर होता है ना बच्चों, रबर से लेटेक्स निकाला जाता है और उस लेटेक्स को बाद में कंपोजिट करके रबर बनाया जाता है। जस्ट लाइक दैट सोला पिट जो है वो भी एक तरीके का पेड़ होता है जिसमें उसको स्पॉन्जी प्लांट को यूज करके, इसका यूज करके, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को एक स्टेम भी दिख रही होगी राइट साइड में। ठीक है, उस स्टेम को काट कर, उसके बाद को काट कर वहाँ से उसमें से ब्रिटिश इंटीरियर वुड को निकाल कर बनाया जाता है। ये देखो आप लोग पिक्चर देख सकते हो, इसके डिजाइन की छोटी छोटी कार्विंग मशीन से करके इस तरीके के डिजाइन या टॉयज बनाए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो ये शो पीस है बच्चों। हाँ,
तुम बंगाली हो? Yes, ma'am. अच्छा, कभी देखा है अपने यहाँ की शादी होते हुए? जोनी, Yes, ma'am. शादी में क्या पहनते हैं सर पे दूल्हा दुल्हन? मैम साड़ी टाइप का ही होता है मैम. नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तुमको मैं दिखाती हूँ, तुमको लग रहा है तुमने कभी शादी अटेंड नहीं करी है। मैम की है मैम. ये मैम शायद आप देख रहे हैं पिक्चर? इसमें ये जो हीरो और हीरोइन निशान खट्टर और ये आपकी जो दिख रही है, इसके सर पे एक तरीके का सेहरा देखा आपने? और ये पिक्चर देखो, इसमें जो लड़की और लड़के ने अपने सर पे एक सेहरा पहन रखा है, ये इसी से बनता है बच्चों। आया समझ में अब? ये देखो, इन दिस पिक्चर ऑल्सो। आया आया समझ में जोनी? यस मैम. हाँ, इसको पहनते हैं ना शादी में। तो ये 16 फीट ही होता है। किसी ने पूछ लेना तो अपने घर में या अपने फैमिली मेंबर्स में जो भी इस तरीके का कभी भी शादी हुई है या मम्मी पापा से पूछ लेना, तो वो तुम्हें इसके बारे में बताएंगे कि ये किस चीज़ से बनता है। ये स्पेशली क्राफ्ट वर्क होता है और ये स्पेशली बनाया ही जाता है केवल शादियों के लिए। और इसको जानते हो सबसे खास बात क्या होती है? इसको बहुत पवित्र माना जाता है वहाँ पर। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि बैम्बू की जो अभी आपने सिक्किम में जो बौद्धा जी की वो पिक्चर देखी थी जिसमें पेंट किया जाता है कपड़े में, उसको सिलाई की जाती है उसकी, जैसे वो पवित्र मानते हैं वहाँ पर सिक्किम में, वैसे ही बंगाल में भी लोग इसके बिना शादी नहीं करते। ये पहनना उनके लिए मस्ट होता है। ये इसके बिना उनके यहाँ शादी नहीं होती। जोनी को तो पता ही होगा ये बात। चलो आगे चलते हैं एप्लीक के बारे में। What is this? मैम इसको बेनारसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? एप्लिक एम्ब्रॉयडरी। ये कहाँ से है बच्चों एप्लिक एम्ब्रॉयडरी? फाइंड इट। इस एप्लिक एम्ब्रॉयडरी की एक खास बात जानो बच्चों कि एप्लिक एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो ज्यादातर फ्लावर्स इसमें बनाए जाते हैं, फ्लावर्स और इसकी डिजाइन, और इसकी जो धागा होता है ना वो बहुत ही स्पेशल तरीके से छोटी छोटी गांठों में इसकी डिजाइन बनी होती है। ये वाली पिक्चर आपने बहुत ज्यादा पाई होगी, ज्यादातर उसके ऊपर जो आपके जो है रुमाल होता है ना, रुमाल पे और आपके हैंडकरचीफ में आप ज्यादातर इस तरीके की डिजाइन पाओगे। तो इसको हम लोग एप्लिक डिजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लिक डिजाइन। ठीक है, इसके फैब्रिक को भी देख लेते हैं हम लोग। एप्लिक डिजाइन का फैब्रिक है ये। ठीक है, ये वाली डिजाइन आप लोगों को रेशम के धागे से की जाती है। ये सिल्क के धागों से इस पे डिजाइन की जाती है। इसमें कौन से धागे का इस्तेमाल करते हैं? केवल और केवल सिल्क का यूज करते हैं, इसमें कॉटन का यूज नहीं होता। ठीक है, केवल और केवल सिल्क के धागे का ही यूज किया जाता है, यही इसकी खास बात है। चलो अगला चलते हैं। और एप्लिक कहाँ से है बच्चों? ओडिशा से। कहाँ से? मैम उड़ीसा से। हाँ, अब जोराय से। ठीक है, जोराय के बारे में आप लोग की बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट इट। जोराय इज अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ असम and in simplistic terms it is an offering tray mostly made of bell metal you know, घंटी जानते हो? घंटी जो हम लोग मंदिर में यूज करते हैं, जो घंटी का जो मेटल होता है ना, ज़्यादा हम लोग के घर में पीतल का यूज़ किया जाता है ना, तो उसी तरीके से उसका भी यूज़ करते हैं। और ये जानते हो ये बिल्कुल घंटी की तरह ही दिखता है। आप लोगों को पिक्चर दिख रही होगी 11 पेज नंबर 9 पर 11 पिक्चर दिख रही होगी। इसकी खास बात क्या होती है कि इसको ऐसे हाथों से इस तरह घुमाया जाता है। आप लोगों ने जोराय को देखा होगा लोगों को घुमाते हुए। ये इसको जो है ना, ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही होगी, इस पिक्चर को गोल गोल घुमाया जाता है।
ठीक है। और ज्यादातर इसका यूज बुद्धिस्ट लोग करते हैं। कौन करते हैं? बुद्धिस्ट लोग करते हैं इसका यूज। और इसमें एक और खास बात होती है, आप पूछोगे कि ये किस लिए यूज करते हैं मैम? इसमें ज्यादातर लोग इसके अंदर कोयला भर देते हैं और कोयला भरने के बाद इसको घुमाया जाता है तो घर में धुआं करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। हाँ बेटा, हाँ कोयला भरने के बाद इसको घुमाया जाता है गोल गोल। इसकी पिक्चर तुम लोगों को मैं दिखाती हूँ, जोराय की वीडियो घुमाते हुए। कोई दिख ही नहीं रहा। इसको घर में धुआं करने के लिए घुमाते हैं। इसको जैसे क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। तुम लोगों ने उनको देखा होगा, बंगालीज को देखा होगा, जब वो लोग जो जोराय होता है ना, उसको वो लोग क्या करते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, वो लोग एक धुआं लिए रहते हैं अपने हाथ में और उस धुएं से पूरे उसको दुर्गा पूजा में घुमाते रहते हैं और सब जैसा जगह धुआं फैलता रहता है। अब याद आ गया होगा। हाँ, तो उसमें जोराय का ही यूज किया जाता है। ठीक है। हाँ बेटा, अब इसमें आप लोगों को नेक्स्ट, हाँ वो मिट्टी का भी होता है, लेकिन जो लोग कुछ लोग, अब भाई सब लोग इतने पैसे वाले तो होते नहीं है कि पीतल का खरीद लें, तो कुछ लोग मिट्टी का खरीद लेते हैं। अब तुम ही बता बेटा कि कुछ जो लोग पूजा करते हैं, मतलब जैसे जो हिंदू माइथोलॉजी में जो लोग वर्शिप करते हैं, वो पानी चढ़ाने के लिए पीतल के घड़े का भी यूज करते हैं और कुछ लोग मिट्टी के घड़े का भी यूज करते हैं। तो वो सबकी शक्ति के अनुसार, सबकी कैलिबर के अनुसार होता है ना कि कौन कितना बड़ा अफोर्ड कर सकता है। जो भाई जो ज्यादा पैसा जिसके पास होगा वो पीतल का यूज करेगा, जिसके पास कम पैसा होगा वो आदमी मिट्टी का ही घड़ा यूज करेगा। आया अंतर समझ में? दिया लोग पीतल का भी खरीदते हैं, दिया लोग मिट्टी का भी खरीदते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आपके पास कितना पैसा है आप खर्च करने के लिए। तो कुछ लोग जोराय मिट्टी का भी यूज करते हैं और कुछ लोग भी, लेकिन जो असली जोराय होता है वो पीतल का ही बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आप लोगों का सेरेमोनियल एंड थिएटर मार्क्स। ये तो तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पिक्चर दिख रही है 14 नंबर पे, फ्रॉम मणिपुर दिख रहा है। उसमें आप लोगों को ये बता, जो पिक्चर आप लोगों को दी हुई है वो किसकी पिक्चर है? कोई मुझे बता सकता है? क्लास, जो पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई है फ्रॉम मणिपुर लिखा हुआ है, वो बता सकते हो वो पिक्चर किसकी है?